And it's been awful dry in Colorado this year, as it has been across the country. And all at once, I suppose there was 200 men ahead of us, or 100 men, pardon me, about 100 men ahead of us, up above the camps. और इस वर्ष कोलोराडो में भयंकर सूखा था, जैसा कि सारे इलाके में था, और अचानक से वहां पर मैं समझता हूं कि 200 व्यक्ति या 100 व्यक्ति हमसे आगे थे, क्षमा करें, 100 व्यक्ति हमसे आगे पड़ाव के ऊपर थे. And they've been shooting up there for 4 or 5 days, and I'd shot a deer, one that I've been hunting for years. And but I come a fog down, and I didn't get to see him. I couldn't find him, and I'd been hunting for him that day. और वे वहां 4-5 दिनों से शिकार कर रहे थे, और मैंने एक हिरन मारा, एक ही जिसे मैं वर्षों से मार रहा था, और परंतु मैं नीचे कोहरा आ गया और मैं उसे देख नहीं पाया, मैं उसे ढूंढ नहीं सका, और उस दिन मैं उसी का शिकार खेल रहा था. And the next day, the phone, or the coming on the radio, a blizzard coming could dump 20 foot of snow in these mountains overnight. और अगले दिन फोन यानी रेडियो पर आया, बर्फ की आंधी आ रही है, जो कि एक ही रात्रि में इन पहाड़ों पर 20 फीट बर्फ गिरा देगी. And so I said to the brethren, I called them in, the Martin boys was there also. I said, brethren, you hear what the news said. और इसलिए मैंने भाइयों से कहा, मैंने उन्हें अंदर बुलाया, मार्टिन लड़के भी वहां पर थे. मैंने कहा, भाइयों, आपने सुना कि रेडियो ने क्या कहा? Now, if you want to get out, you better go right now, because it's going to be too late. यदि तुम जाना चाहते हो तो अच्छा है अभी, क्योंकि फिर देर होने जा रही है. You might stay here for a week, and I should go, because next Monday I've got a meeting, Christian businessmen, full gospel businessmen, at the chapter at Tucson. तुम्हें यहाँ एक सप्ताह के लिए रुकना पड़ सकता है, और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अगले सोमवार मेरी एक सभा है, क्रिश्चियन बिजनेसमैन, फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन चैप्टर ट्यूसन में. However, you make your choice. If you want to stay, I'm your guide. I'll stay here with you. Every one of them voted, we'll stay. We'll stay. जो भी है, अपना चुनाव करो. यदि तुम टिकना चाहते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ. हर एक ने मत दिया, हम रुकेंगे, हम रुकेंगे. The Martin boys, having a low-speed truck, or high-speed truck rather, we had a couple of extra deer there. We give them to the Martin boys and they went out because they wouldn't get out of there. That's all. So they're sitting here as a witness tonight. मार्टिन लड़कों के पास कम गति का ट्रक, या बल्कि तेज गति का ट्रक था. वे सारे, हमारे पास कुछ एक हिरन और थे, हमने वो मार्टिन भाइयों को दे दिए और वे चले गए, क्योंकि वे बाहर नहीं निकलेंगे. बस इस प्रकार से वे यहाँ आज रात्रि एक गवाह के रूप में बैठे हुए हैं. And then the next day I thought, well, it didn't snow that day, the day they went out. I said, I'm going to call the wife and tell her I'm thankful for her being a nice wife and all, it's her anniversary. And then tomorrow I'll go up to the place if we get up there for the snow. और फिर अगले दिन मैंने सोचा, ठीक उस दिन बर्फ नहीं गिरी जिस दिन वे गए. मैंने कहा, मैं पत्नी को फोन करने जा रहा था और उसे बताया, मैं एक अच्छी पत्नी के लिए धन्यवादित हूँ और सब कुछ, ये उसकी वर्षगांठ है. और फिर कल मैं उस स्थान पर जाऊंगा यदि हम वहां बर्फ के लिए पहुंच पाए. And so I went in, I couldn't call her. I come back, and everybody in town getting ready, and the big blizzard is coming, the paper says could dump 20 foot of snow in Colorado that night. और इसलिए मैं अंदर गया और मैंने उसे फोन ना कर सका. मैं वापस आया, नगर में हर कोई तैयारी में था और एक बड़ा बर्फ का तूफान आ रहा था. अखबार ने कहा कि कोलोराडो में उस रात्रि 20 फुट बर्फ पड़ सकती है. Brother Tom Simpson is sitting present here somewhere tonight, or should be. He was in Canada and was on his road down, and they bypassed Colorado. Great blizzard. आज रात्रि भाई टॉम सैमसन यहीं कहीं उपस्थित बैठे हैं, या होना चाहिए. वे कनाडा में थे और अपने रास्ते नीचे जा रहे थे, और वे इसके पास से निकल गए. वो कोलोराडो के एक ओर से निकल जाओ, बड़ा बर्फ का तूफान. Are you here, Brother Simpson? Where are you? Yes, sitting back in the back here. And they told him bypass Colorado, a great blizzard coming on. भाई सैमसन, क्या आप यहाँ पर हैं? आप कहाँ हैं? हाँ, वहाँ पीछे बैठे हैं, पीछे वहाँ. और उन्होंने उन्हें बताया, कोलोराडो के एक ओर से निकल जाओ, एक बड़ा बर्फ का तूफान आ रहा है. So I told sister and another man's wife, Brother Evans. I don't think Brother Evans is here tonight. I said, just come in. Are you here, Brother Evans? And I don't think he's gotten here. He'll be here at the convention. इसलिए मैंने बहन को बताया, दूसरे व्यक्ति की पत्नी को, भाई इवान की. मैं नहीं सोचता कि आज रात्रि भाई इवान यहाँ हैं, जब तक कि वे आए ही ना हों.
भाई इवान, क्या आप यहाँ हैं? मैं नहीं सोचता कि वे अभी तक आए हैं, यद्यपि वे यहाँ पर बेदारी सभा में होंगे। So I called his wife and I said, I couldn't get my wife. She's gone out to the store. And I said, tell her to tell Brother Tony Stromey, which was the president of the chapter, if I'm not in there Sunday, get another speaker ready because I may not be able to get out of here at all. I'm with these men. इसलिए मैंने उनकी पत्नी को फोन किया और मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी से संपर्क नहीं कर सका, वो बाहर दुकान पर गई है, और मैंने कहा उसे कहना कि भाई टोनी स्ट्रोमी से कहे, जो कि चैप्टर के अध्यक्ष थे, यदि मैं वहां रविवार को ना हूं तो दूसरे वक्ता को तैयार रखें, क्योंकि संभव है मैं यहां से बाहर ना निकल पाऊंगा, मैं इन लोगों के साथ हूं। Then what taking place? That night it didn't snow. The next morning the clouds was real low and angry. तब फिर क्या घटित हुआ? उस रात्रि बर्फ नहीं गिरी, अगली सुबह बादल बहुत नीचे और गुस्से में थे। I said, now brethren, I've herded cattle in here for years and guided. The first little drop of rain, take back for the camp as quick as you can, because within 15 minutes I see the time you couldn't see your hand before you for 2 or 3 days at a time. Twisting blizzard, that's 9,000 feet right there. मैंने कहा, अब भाइयों, मैंने यहाँ वर्षों पशु चराए हैं और मार्गदर्शन किया है। वर्षा की पहली छोटी बूंद के पड़ते ही जितनी जल्दी हो पड़ाव पर वापस हो लेना, क्योंकि 15 मिनट में आप अपना हाथ नहीं देख सकेंगे। 2-3 दिन तक उस समय बवंडर वाली बर्फ की आंधी जो वहाँ 9,000 फीट पर थी। I said, you'll just be in a blizzard and you'll be lost and you'll die here in the mountains. और मैंने कहा, तुम बर्फ के तूफान में होगे और तुम खो जाओगे और तुम यहाँ पहाड़ों में मर जाओगे। Now we'll go out. I placed each man. Now I went up over the top. अब हम बाहर जाएंगे। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को ठीक स्थान पर रखकर और मैं ऊपर चोटी पर चला गया। I said, now don't wait for me to come in. Hurry just as quick as it starts the first little speck of rain. Rush quickly to the camp because you won't be able to find your way back. They said they would do it. और मैंने कहा, अब यदि मैं वापस आने के लिए मेरी प्रतीक्षा मत करना, जल्दी करो, जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो। वर्षा की पहली बूंद, जल्दी ही पड़ाव की ओर दौड़ो, क्योंकि वापसी के लिए तुम मार्ग नहीं ढूंढ पाओगे। उन्होंने कहा वे करते हैं। I climbed high, coyotes hollering everywhere. I knew the weather was going to change. मैं ऊंचे पर चढ़ा, भेड़िया चारों ओर शोर मचा रहा था और मैं जान गया कि मौसम बदलने जा रहा है। Then all at once a big blast of wind come and the sleet began to fall. And I said, I guess everybody's headed back. तब एकदम से हवा का धमाका हुआ और बर्फ गिरना आरंभ हो गई और मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि हर कोई वापस हो गया। Well, I stood and looked around. I thought I wished I could find that deer before I go back because the snow will cover him up. They won't be found in Mortal Spring. मैंने सोचा हुआ और चारों ओर घूम कर देखा। मैंने सोचा, मेरी इच्छा थी कि वापस जाने से पहले मैं एक हिरन ढूंढ लूं, क्योंकि बर्फ उसे ढांक लेगी और फिर वसंत तक वे फिर नहीं मिलेंगे। So I thought I hunted so hard for that deer, and it's the first deer I ever let get by like that since I've owned this little rifle, a 55 head of game with it. And I thought, well, I just hate to see you get away like that. इसलिए मैंने सोचा, मैंने हिरन के शिकार के लिए बहुत मेहनत की और ये पहला हिरन था जिसे मैंने कभी इस प्रकार से पाया जब से मैंने ये छोटी बंदूक ली है। इससे शिकार के 55 सिर, और मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं इस प्रकार से जाना पसंद नहीं करता। In just a moment, great big snowdrops looked like quarters, just falling everywhere, and the wind started blowing, and I could hardly see how to get off the top of this peak. और एक ही क्षण में एक बड़ी बर्फ की बूंद चवन्नी जैसी दिख रही थी और हर तरफ गिर रही थी। हवा चलनी शुरू हो गई और मैं कठिनाई से देख पा रहा था इस चोटी पर से कैसे हटूं। And I know to stay on this ridge, and if I went down and hit the creek, I'd go down the creek till I hit a little footbridge, then I could feel my way up till I got to where the tent was. That's the only way you get out. और मैं इस पर्वत श्रेणी पर रुकना जानता था, और यदि मैं नीचे गया और छोटी नदी पर पहुंच गया, मैं छोटी नदी पर तब तक जाऊंगा जब तक पैदल के छोटे पुल को न पहुंच जाऊं। तब मैं अपने मार्ग का अनुभव करके ऊपर जाऊंगा, और जब मैं वहां न पहुंचूंगा जहां तंबू थे, केवल यही विधि है कि मैं निकल सकूं। And so I thought if I ever make a move one way or the other, that's all. You'll never be found. So you die right in there. और इसलिए मैंने सोचा, यदि मैंने कभी एक मार्ग पर या दूसरे पर चलना आरंभ करूं तो बस, तो आप फिर कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस प्रकार से आप वहीं मर जाएंगे। So I started back down the mountain. And I got down about, I guess 300 yards or 400 from where I was.
इस प्रकार से मैंने पहाड़ से उतरना आरंभ कर दिया और मैं लगभग मैं समझता हूँ मैं 300 गज चला हूँगा या 400 वहां से जहां से मैं था। Now this sounds strange, but I got a Bible in here before me, a Heavenly Father bearing me record. अब ये विचित्र सा लगता है, परंतु यहाँ बाइबल मेरे सामने है, स्वर्गीय पिता मेरी गवाही रखता है। Almost in a run, trying to get off, the wind is blowing so hard up there, and I could see about 20 feet in front of me in the thickets I was in, the timber, and wind blowing and twisting, and a voice said, "Stop, go back where you come from." मैं लगभग दौड़ रहा था, वहां से जाने के यत्न में था और हवा बहुत तेज चल रही थी और मैं अपने सामने लगभग 20 फीट देख सकता था। उन झाड़ियों में था, हवा से पेड़ बल खा रहे थे और आवाज ने कहा, रुको, वहीं वापस जाओ जहां से आए हो। Well, I stopped. I thought maybe that's just the sound of that wind. I wasn't thinking about nothing like that. I waited just a moment. मैं रुक गया। मैंने सोचा हो सकता है ये हवा की आवाज हो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था और मैं कुछ क्षण के लिए रुका। And one of the boys had fixed me a sandwich, and I pulled it out, and it was really a sandwich. Me raining, sweating, it's just a big lump of bread with some meat in somewhere. Well, I was kind of hungry, so I ate it anyhow. और एक लड़के ने मेरे लिए सैंडविच रख दिया था और मैंने इसे निकाला और ये वास्तव में सैंडविच था और मैं वर्षा हो रही थी और पसीने आ रहे थे। ये रोटी का बड़ा भाग, उसमें कहीं मांस था। मैं थोड़ा सा भूखा था, जो भी है, मैंने इसे खाया। And I stand there and I beard the little piece of paper so animals see those things and anything in civilization they run and get away. और मैं वहां खड़ा हुआ था और मैंने छोटे कागज के टुकड़े को गाड़ा, इसलिए कि जानवर उन चीजों को देखेगा और कोई भी चीज जो सभ्यता वे दौड़ते हैं दूर चले गए। So I stood there a little bit and I thought, well, I'll go on. I started on, and just as plain as you hear my voice, something said, turn and go back where you come from. मैं वहां थोड़ी देर खड़ा रहा और मैंने सोचा ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आरंभ किया और जैसे स्पष्ट आवाज आप मेरी सुन रहे हैं, किसी चीज ने कहा, घूमो और वहीं वापस जाओ जहां से आए हो। How could that be God telling me to walk into that death trap? कैसे परमेश्वर मुझसे ये कह सकता था कि मृत्यु के फंदे में चला जा। I stood there a minute and I thought, that's the same one that said about them squirrels. The same one I told you about last night about my wife. Just a voice, just a human voice. मैं वहां 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ और सोचा, ये वही है जिसने उन गिलहरियों के विषय में कहा था। उसी के विषय में मैंने आपको पिछली रात्रि बताया था, अपनी पत्नी के विषय में एक आवाज, एक मनुष्य की आवाज। The same one told me when I was a little boy never drink or smoke, and these things would be in the last days. उसी ने मुझे बताया जब मैं छोटा लड़का था, कभी भी ना पीना, ना धूम्रपान करना, और ये बातें अंत के दिनों में होंगी। God and me telling this the Bible over my heart, what good would do me to tell you something wrong and know that I'm sending my soul to hell? It's true. It's unusual, but it's true. परमेश्वर, और मैं ये सब बाइबल को अपने हृदय पर रखकर बता रहा हूँ। ये मेरा क्या भला करेगा यदि मैं कुछ भी आपको गलत बताऊं और जानते हुए कि मैं अपने प्राण को नरक में भेज रहा हूँ। समझे, ये सत्य है। ये असाधारण है, परंतु ये सत्य है। Well, I thought I know enough to obey that voice. Why would I? He's got some reason for me to go up there. Maybe it's my time to go. अच्छा ठीक है, मैंने सोचा उस आवाज का पालन करना मैं भली प्रकार से जानता हूँ। मैं क्यों चाहूंगा? मेरे लिए उसके पास कोई कारण होगा कि वहां जाऊं। संभव है ये मेरे जाने का समय हो। So I turned and making my way through the wilderness until I got up to that saddle again, way up, maybe 300 yards, 400 above, right straight up the mountain like that again. इसलिए मैं घूमा और उस जंगल में से होते हुए अपना मार्ग लिया, जब तक मैं वहां फिर से अवतल पर्वत पर नहीं पहुंच गया। वहां ऊपर संभव है 300 गज 400 या 400 ऊपर, सीधा ऊपर पहाड़ पर फिर से इस प्रकार से। It was so thick up there that I couldn't see the wind, trees just laying over and twisting. तब उस समय वहां इतना घना था, मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। हवा पेड़ नीचे को लगा रही थी और लहरा रहे थे। And I took my rifle. I had on a red shirt and a red cap, and I put the rifle, keep them smoking up the scope in it because bear and stuff moving them kind of times. So does line. And if I run into one, the scope all smoked up. मैंने अपनी बंदूक ली, मैंने लाल कमीज पहन रखी थी
और लाल टोपी। मैंने बंदूक रखी, कोहरे से बचाई उसकी दूरबीन, क्योंकि भालू आदि ऐसे समय में घूमते हैं, ऐसे ही सिंह। और यदि मैं एक के पीछे भागूंगा तो दूरबीन में सब धुंधला हो जाएगा। I just held it up like this, not against me to throw smoke, but keep the fog out of it and the wet from the snow. And I sat down under a tree. और मैंने इसे इस प्रकार से पकड़ लिया, अपने सामने नहीं जहां ये धुंधली हो जाती, परंतु कोहरे को इससे बाहर रखा और बर्फ से गीली, और मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। I sat down. I thought, well, why would he want me to come up here? I doubt very much I can find my way down now. Getting so terrific. मैं वहां बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि वो क्यों चाहता है कि मैं यहाँ ऊपर आऊं। मुझे बहुत ही संदेह लगा, मैं नीचे अब अपना मार्ग खोज सकता हूँ। बहुत ही भयानक स्थिति में था। I could see about 10 or 15 feet, maybe not hardly that far. Sometimes not over 5 feet and getting rougher all the time. मैं केवल लगभग 10 या 15 फीट देख सकता था और उस समय के साथ और खराब हो रहा था। Well, he said, come back. All I know to do is sit here. ठीक है, मैंने सोचा अच्छा। उसने कहा वापस आओ। कुल मिलाकर ये जानता हूँ कि यहाँ बैठा हूँ। In the snow then about an inch and a half, maybe 2 inches on the ground. It'd been about 20-30 minutes. और तब बर्फ लगभग 1 इंच या 1.5 इंच, संभव है 2 इंच रही होगी जमीन पर। ये लगभग 20 या 30 मिनट हुए थे। And it's blowing so hard, it's blowing it away too. And I sat there just a moment. और ये बहुत तेज थी, ये इसे भी उड़ा रही थी, और मैं बस वहां पर बैठा हुआ एक क्षण निकला। I heard a voice. He said, I'm the God of heaven, who created the heavens and earth. मैंने एक आवाज सुनी। उसने कहा, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। I jerked off my cap. And I just sat still. Now listen again. I thought that wasn't the wind. Although it was blowing, making noise. मैंने अपनी टोपी झटकी, और मैं शांत बैठ गया। और मैंने फिर से सुना। मैंने सोचा ये हवा नहीं थी, ये बहती हवा शोर मचा रही है। Now I heard again. Said, I'm the one who stilled the winds upon the mighty sea. I'm the one, the creator. I created squirrels in your presence. I did these things. और मैंने इसे फिर से सुना। कहा, मैं वही हूँ जिसने सामर्थी सागर पर हवा को शांत कर दिया। मैं ही सृष्टि करता हूँ। मैंने तेरी उपस्थिति में गिलहरियों की सृष्टि की। मैंने ये चीजें की। I said, yes, Lord, I believe you. मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपका विश्वास करता हूँ। He said, stand on your feet. I stood up to my feet. He said, now speak to the storm. It'll do what you tell it to do. कहा, अपने पैरों पर खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया। अपने पैरों पर उसने कहा, अब तूफान से कहे, ये वही करेगा जो तू इससे करने को कहेगा। That is true. When I meet you at the judgment, I'll have all this to answer for. अब ये सत्य है। जब मैं आपसे न्याय पर मिलूंगा, मुझे इन सब बातों का उत्तर देना होगा। I said, storm, go to your place, stop. The sun, you shine normally for 4 days. मैंने कहा, तूफान अपने स्थान पर चला जा और रुक जा, और सूर्य, और तू 4 दिनों तक साधारणतः चमक। And no more than I'd said that, the sleet and hail which is about to blow me down just stopped. And within a moment or two, the sun was shining right down through upon me. और मैंने इससे अधिक ना कहा कि बर्फ के ओले जो कि मुझे नीचे उड़ा देने पर थे, एकदम से रुक गए, और 1-2 क्षणों में सूर्य मेरे ऊपर चमक रहा था। And I looked down across the mountains. I see a east wind come. The wind was coming from the west. मैंने पहाड़ों के पार देखा। मैं देखता हूँ कि पूर्व की हवा आती है। हवा पश्चिम से आ रही थी। East wind come and was coming this way. And I could see the clouds. This mysteriously where they went, I don't know. पूर्व की हवा आई और इधर से आ रही थी, और मैं देख सकता था कि बादल भेदपूर्ण रीति से वे कहाँ गए, मैं नहीं जानता। And I stood there a few moments, tears running down through my beard, them gray. Oh God, how I don't know what to do. और मैं वहां कुछ क्षण खड़ा रहा। मेरी सफेद दाढ़ी पर से आंसू बह रहे थे,
और मैंने सोचा, परमेश्वर, कैसे मैं नहीं जानता कि क्या करूं। I thought, well, I guess the brethren are all back in the tent and the sun's shining everywhere. मैंने सोचा ठीक है, मैं समझता हूं कि भाई लोग वहां सब तंबू में होंगे और सूर्य चारों ओर चमक रहा है। I started walking down the mountain, snow all drying up, that hot sun, steam coming out of my shirt, just a moment or two difference. और मैंने पहाड़ से नीचे चलना आरंभ किया और सारी बर्फ सूख रही थी। उस गर्म सूर्य से मेरी कमीज से भाप उड़ रही थी, 1 या 2 क्षण का अंतर। I started walking down the mountain. When I did, I heard a voice say, "Why don't you walk with me?" मैंने पहाड़ से नीचे उतरना आरंभ किया और हो गया। मैंने एक आवाज को कहते सुना, तू क्यों नहीं मेरे साथ चलता है? I said, "Lord, the greatest privilege I ever had." I turned and started back down through the big deer trails down through that virgin forest. मैंने कहा, प्रभु, महानतम सौभाग्य जो कभी मुझे मिला। मैं घूमा और बड़े हिरणों की पगडंडी के सहारे नीचे उतरने लगा, उस पवित्र जंगल से होते हुए। I thought, well, I'll walk on down that way to where I always pay my salute to Mimi, my wife. और मैंने सोचा ठीक है, मैं उस मार्ग से नीचे जाऊंगा जहां मैं सदा मेड़ा अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देता हूं। I was going along there about a half hour, 3/4 later. Snow was all dried up and gone. और बाद में मैं लगभग आधा या पौने घंटा से चला जा रहा था, सारी बर्फ उड़ गई और चली गई थी। I began to think, I wonder why she has never said anything to me about going. I said, I remember when I first took her up there and lifted her over them logs when we were married. I said, now she's gray. और मैंने सोचना आरंभ किया। मैंने आश्चर्य किया कि उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा मेरे जाने के विषय में। मैंने कहा, मुझे याद है जब मैं पहली बार उसे वहां ले गया और उन लट्ठों पर से उसे उठाया, और जब हम विवाहित थे, मैंने कहा, अब उसके बाल सफेद हो गए हैं। I went, gray beard over my face, black and gray mixed together. I thought, Bill, you ain't got much longer. You're getting old. मैं चला गया, मेरी सफेद दाढ़ी काली सफेद मिली जुली। मैंने सोचा, बिल, अब तेरे पास अधिक समय नहीं है, तू बूढ़ा हो रहा है। I started moving along, and I looked up. Looked like I could see her standing before me there with her arms out, still black-headed. और मैं आगे बढ़ने लगा और मैंने ऊपर देखा। ऐसा लगा मैं उसे वहां अपने सामने खड़े देख सकता था, अपनी बाहें बाहर निकाले, अभी भी काले बाल। I held my head down. I was going up a little place where some quaking ass, and there's a little crook, and I was leaning my head against a limb like this. मैंने अपना सर नीचे कर लिया और मैं छोटे से स्थान में से जा रहा था जहां बोलने वाले विषैले सांप, और वहां एक छोटा सा मोड़। मैंने अपना सिर जरा सा झुकाया डाली के सामने इस प्रकार से। I was standing there crying. And I could hear something going pat, pat, pat. And I looked down. It was the water coming from my eyes through my beard, hitting on them dry leaves. Or about 30 minutes before there was an inch of snow and it blizzarding. और मैं वहां खड़ा था, रो रहा था। मैं सुन सकता था कि कोई चीज पट 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 करके जा रही है, और मैंने नीचे देखा और ये आंसू मेरी आंखों से टपक रहे थे, मेरी दाढ़ी में से होते हुए उन सूखी पत्तियों पर गिर रहे थे जहां लगभग 30 मिनट पहले 1 इंच बर्फ थी और बर्फीली आंधी। When I come down off the mountain 4 days later, not one cloud in the sky for 4 days later. जब 4 दिन के बाद मैं पहाड़ से नीचे उतरा, 4 दिन से आकाश में एक भी बादल नहीं था। I come in, I said to the filling station man, been pretty dry. Yes, said, you know the strangest thing, was predicted a storm the other day, and it stopped all at once. मैं नीचे आया और मैंने तेल भरने वाले से कहा, क्या सुंदर सूखा दिन। हाँ, कहा, आप जानते हैं कि विचित्र बात, उस दिन तूफान की भविष्यवाणी थी और आप जानते हैं ये एकदम से रुक गया। And then I come on down to the New Mexico line, coming back to Arizona, and I said to Billy, my son, I said, let's go in here and just see if it's down this way. और फिर मैं न्यू मैक्सिको की पंक्ति में नीचे उतरा, वापस एरिजोना जा रहा था, और मैंने अपने पुत्र बिली से कहा, मैंने कहा, आओ हम इधर चलें और जरा देखें यदि ये इस ओर था। I stopped in there on a Sunday morning, got some gasoline, and the man said, well, been hunting? I said, yes, sir. Any luck? I said, yes, sir. We had a fine time. I said, looks pretty dry. मैं वहां रुक गया। ये रविवार की प्रातः थी, कुछ मेरे पास कुछ ईंधन था, और उस मनुष्य ने कहा, अच्छा शिकार कर रहे थे?
मैंने कहा हाँ श्रीमान, कुछ भाग्य से। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान, हमारा अच्छा समय था। मैंने कहा सुंदर सूखा दिखता है। He said, yeah, it's been awful dry through here. He said, we was promised a big snow the other day and said, you know, the blizzard actually started and somehow or another it quit. Oh my. और उसने कहा जी हाँ, यहाँ बहुत ही सूखा रहा। उसने कहा हमें उस दिन बहुत ही बर्फ पड़नी थी, भविष्यवाणी दी गई थी, और कहा आप जानते हैं कि बर्फ की आंधी वास्तव में आरंभ हुई और कुछ ऐसा हुआ कि ये चली गई। ओह प्रभु, ओह प्रभु। Now standing at the side of this tree in closing, standing beside this tree, the tears dropping from my eyes. I thought, God, मैं इस पेड़ के एक और टिका खड़ा था, इस पेड़ के एक और खड़ा था, और आंसू मेरी आंखों से गिर रहे थे। मैंने सोचा परमेश्वर, just think, the same God that said, peace, be still to the waves. Yes, Lord. And the winds obeyed him. He's still the same Jesus is right here in the woods with us. जरा सोचिए, वही परमेश्वर जिसने कहा शांत रहे और रुक जा, उन लहरों से और हवा ने उसकी मानी, वो अब भी वही परमेश्वर हमारे साथ इस जंगल में है। He's still the Word. The Word, all nature has to obey His Word, for He's a creator of nature. वो अब भी वचन है, वो वचन सारी सृष्टि को उसका वचन मानना है, क्योंकि वो प्रकृति का सृष्टि करता है। I stood there and the tears dropping off of my cheeks. And for about 5 years now, I've been off the field just going to churches and whatever I could. You all know that. मैं वहाँ खड़ा रहा, आंसू मेरे गालों पर से गिर रहे थे। अब लगभग 5 वर्षों से कार्य क्षेत्र से अलग बस कलीसियाओं में जा रहा हूँ, या जो भी कर सका। आप लोग सब जानते हैं। And my heart's been burdened. I'd go out here, come to Arizona, and he would tell me things to do it. I'd go do it, but it looked like the revival's over. And I couldn't wonder what was taking place. और मेरे हृदय पर बोझ था, मैं बाहर जाऊंगा और एरिजोना आऊं और वो मुझे करने के लिए बातें बताएगा। मैं इसे करने के लिए जाऊंगा, परंतु ऐसा दिखता है कि बेदारी हो चुकी। मैं नहीं कर सका। आश्चर्य है कि क्या घटित हो रहा था। My heart, I'd repent. I'd say, Lord, if I've done anything, tell me. I'll make it right. But it's burdened all the time, just a horrible feeling. I couldn't have the victory that I wanted. मैं अपने हृदय में पछताया। मैं कहूंगा, प्रभु यदि मैंने कुछ किया हो तो मुझे बताएं, मैं उसे ठीक करूंगा। सारे समय बोझ रहा, बस भयानक सी अनुभूति, और मैं वो जय नहीं पा सका जो मैं चाहता था। Many great things He'd done and showed, which you all are witnesses coming here and telling you about it, seeing the papers, packet, and magazines and so forth, about the great supernatural things that's been seen and done. उसने बहुत सी महान बातें करी और दर्शाई, जिसके आप सब गवाह हैं, यहाँ आ रहे हैं और आपको इस विषय में बता रहे हैं, देख रहे हैं कि अखबारों में ये हैं और पत्रिकाओं में और आदि आदि, उस महान अलौकिक बात के विषय में चीजें जो देखी गईं और हुई। But my heart was still heavy. I was leaning against the bush just like this. I thought, the great God of heaven, that warm sun shining on me, not a cloud nowhere. And a few moments ago, you just contradicted the man's word. Nature did it. परंतु मेरा हृदय अब भी भारी था और मैं झाड़ी की ओर झुका हुआ था इस प्रकार से, और मैंने सोचा, स्वर्ग का महान परमेश्वर मुझ पर सूर्य की गर्म चमक, कहीं भी और कोई बादल नहीं है। कुछ क्षणों पहले आपने मनुष्य के वचन का खंडन किया, प्रकृति ने ये किया। How could it be done, Lord? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It was His word that you just had me to speak. I thought, Father, how grateful I am. प्रभु, ये कैसे किया जा सकता था? यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। ये उसका वचन था जो कि बस आपने मुझे बोलने दिया। मैंने सोचा, पिता, मैं कितना आभारी हूँ। I heard something going. And I looked, standing right before me was 3 deer. And they were looking at me. मैंने सुना कुछ जा रहा था और मैंने देखा ठीक मेरे सामने 2 हिरन खड़े थे और वे मुझे देख रहे थे। Now them deer had been shot at much in the last week. And there was hunters in there, and here I was dressed in red. Anyone knows if they're gone that quick. But they were looking at me. पिछले सप्ताह वे हिरन मारे गए थे। वहां वे शिकारी थे और यहाँ मैं लाल कपड़े पहने हुए था। कोई भी जानता है, वे इतनी जल्दी निकल गए, परंतु वे मुझे देख रहे थे। And for eating deer, there could have been no better. It was a big doe, 2 big full-grown fawns. And I thought, that's just right. We need 3 deer. और हिरन खाने के लिए
वहां इससे अच्छा नहीं हो सकता था। ये बड़ी हिरनी थी, 2 बड़े पूरे बच्चे, और मैंने सोचा ये बिल्कुल ठीक है, हमें 3 हिरणों की आवश्यकता है। Something said, you know, the Lord's put them in your hands. किसी चीज ने कहा, तुम जानते हो कि प्रभु ने इन्हें तुम्हारे हाथों में रखा है। But when I was with the full gospel businessman, Brother Clayton, about a year before he went with us when I caught that big record fish, that year for a man I killed 19 head of elk. परंतु जब मैं फुल गॉस्पल वाले लोगों के साथ भाई क्लिंटन लगभग 1 वर्ष पहले वो हमारे साथ गए, जब मैंने वो बड़ी कीर्तिमान मछली पकड़ी, उस वर्ष में मैंने व्यक्ति के लिए एल्क के 19 सिर मारे। And sometimes businessmen, excuse this, my brother. Some of them are doctors, and they can't walk, and fat, and men sitting to a desk. कभी कभी व्यापारी, मेरे भाइयों से क्षमा करें, इनमें से कुछ डॉक्टर हैं और आप जानते हैं कि वे चल नहीं सकते, और मोटे हैं, आप जानते हैं, और बहुत से डेस्कों पर बैठ गए हैं। He said, Billy, get me 1 2-year-old, get me a blue cow, I want a buck, get me a full rack. Well, I just had a jubilee out there shooting, getting the elk and things. वे कहते हैं, बिली मेरे लिए 1-2 वर्ष का और मेरे लिए नील गाय, मैं हिरन चाहता हूँ, मेरे लिए पूरा भर के, मेरे लिए वहाँ की शिकार की जुबली, एल्क आदि मिल रहे थे। But the Lord told me not to do that. And I promised him in that blizzard over there in Colorado, not years before that, I said, Lord, I'll lead man to the game, but no more kill game for man. No, not unless it's an emergency, we have to have it. परंतु प्रभु ने मुझे कहा कि ये नहीं करना, और मैंने उससे प्रतिज्ञा की वहां कैलोराडो के बर्फानी तूफान में। उससे 1 वर्ष पहले मैंने कहा, प्रभु मैं शिकार में लोगों की अगुवाई करूंगा, परंतु लोगों के लिए शिकार नहीं करूंगा, नहीं, जब तक कि आपात स्थिति ना हो, और हमें इसे लेना था। And if you remember, boys, the night before we left, poor little old brother down there hadn't got a deer, what's his name, Palmer, come around and put a $10 tithes in my hand. He said, Brother Brandon, this is my tithes put in the church. He said, will you get me a deer? Oh. और लड़कों, यदि आप लोगों को स्मरण हो, वो रात्रि इसके पहले हम निकलते, निर्धन बेचारा बूढ़ा, वहां उसे हिरन नहीं मिला, क्या नाम है उसका, पामर, घूम कर आए और मेरे हाथ में $10 दशमांश रख दिया। उसने कहा, भाई ब्रैनम, ये मेरा दशमांश है, इसे कलीसिया में डाल देना। उसने कहा, क्या आप मेरे लिए एक हिरन मारेंगे? ओह, He stood those 3 deer, and I had this rifle of mine on my shoulder. I slipped my shoulder like that. मैं वहां वे 3 हिरन खड़े थे और मेरी ये बंदूक मेरे कंधे पर थी। मैंने इसे कंधे पर से ऐसे सरकाया। I thought they can't get away from me. They're right here. I shoot fast with the rifle, and I get all 3 of them before they can turn around. See? मैंने सोचा वे मुझसे बच नहीं सकते, वे ठीक यहाँ हैं। मैं बंदूक के साथ बहुत तेज था, इससे पहले कि वे घूमते मैं तीनों को ले सकता हूँ, समझे? And I had the rifle. I thought, there they are. Right. I just slipped the rifle. Then I happened to think of that promise. I said, I can't do it. I can't do it. मेरे पास बंदूक थी, मैंने सोचा वे ठीक यहाँ पर हैं। मैंने बंदूक सरका ली। तब ये हुआ कि मैं उस प्रतिज्ञा के विषय में सोचने लगा। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। I said, I remember one time that a man told another, God has put Joab in your hands, or Saul. Joab told David. David said, God forbid that I touch his anointed. That was my promise that I wouldn't do it. मैंने कहा, मुझे स्मरण आया, एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, परमेश्वर ने योआब यानी शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया है। योआब ने दाऊद से कहा, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ना करे कि मैं उसके अभिषिक्त को छूऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं ये नहीं करूंगा। I thought they're right top of this hill. I can roll them right down there. We can pick them up easy. 3 fine deer standing there. I said, no, I can't do it. मैंने सोचा कि वे यहाँ ठीक चोटी पर हैं, मैं इन्हें नीचे तक नहीं ले जा सकता, हम इन्हें सरलता से उठा सकते हैं। 3 शानदार हिरन वहाँ खड़े थे। मैंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। And here this coming up like that, of fawns, 2 full-grown male and female and a mother deer, and they come walking, looking around, great big fat fellows. और यहाँ ये इस प्रकार से 2 नए जवान नर और मादा हिरन के बच्चे और एक माँ हिरनी और चलते हुए आ रहे हैं, चारों ओर देखते हुए, अच्छे मोटे ताजे। I stood there a little bit and I thought that's unusual for deer. And me with this red on like that, I thought I'll scare them. और मैं वहाँ थोड़ा सा खड़ा रहा
और मैंने सोचा हिरन के लिए ये विचित्र है, और मैं जो ये लाल कपड़े पहने हूँ, मैंने सोचा मैं उन्हें डरा दूंगा। I said, "You're in my hands. You couldn't get away if you wanted to, but I'm not going to hurt you. Go on." मैंने कहा तुम मेरे हाथों में हो, अगर तुम चाहो तो भी नहीं भाग सकते, परंतु मैं तुम्हारी हानि करने नहीं जा रहा हूँ, चले जाओ। They just looked at one another and they kept coming. And they got real close to me, looking at me. उन्होंने एक दूसरे को देख और वे आगे बढ़ते रहे, और वे मेरे बहुत पास आ गए, मेरी ओर देख रहे थे। Well, I set the rifle down on the ground and I said, "Mother, take your babies and go on out in the woods. I'm here enjoying myself in the presence of God." मैंने बंदूक नीचे जमीन पर रख दी। मैंने कहा, माँ अपने बालकों को लेकर जंगल में चली जा, मैं यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हूँ। I promised that I wouldn't kill game for other people. I said, "Now you take your babies and go on in the woods. I love that woods too. Go on out." मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं दूसरों लोगों के लिए शिकार नहीं करूंगा। मैंने कहा, अब अपने बच्चों को ले जा और जंगल में चली जा, मैं भी जंगल से प्रेम करता हूँ, निकल जा। She looked at me. Both of them looked around, all three of them. Then they turned and walked away and they come back again. उसने मेरी ओर देखा और उन दोनों ने इधर उधर देखा। वे तीनों के तीनों फिर मुड़े और चले गए, और फिर वे वापस आ गए। I said, "I'm not going to hurt you." I said, "Go on in the woods. You're in my hands. You couldn't get away." But I said, "I've been in God's hands, and yet I couldn't get away either." और मैंने कहा, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, जाओ जंगल में चले जाओ, तुम मेरे हाथों में हो, तुम बच नहीं सकोगे। परंतु मैंने कहा, मैं परमेश्वर के हाथों में हूँ, और फिर मैं अलग नहीं जा सकता, दोनों में से कोई एक। He spared me. I made him a promise. I'm sparing you. Go on. Have a good time. Enjoy this woods. I like it. You go on. उसने मुझे बचा रखा है। मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ, अच्छा समय वन में आनंद करो, मैं इसे पसंद करता हूँ, तुम आगे बढ़ो। They stood there a little while, walked up close to eat out of my hands almost, turned around and looked all at me like that, walked on off, stand, looked back again, walked on out in the woods. वे वहां कुछ देर खड़े रहे और चलकर इतने समीप आ गए कि मैं लगभग हाथ से खिला दूं, घूमे और मेरी ओर इस प्रकार से देखा और चले गए, फिर खड़े होकर देखा, फिर जंगल में चले गए। I thought that's unusual for deer. Wonder if it's because that the Lord Jesus is here, His presence. और मैं वहां खड़ा हुआ था, मैंने सोचा हिरन के लिए ये असाधारण है। क्या ये इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति? Just then, a voice spoke to me. Said, "You remembered your promise, didn't you?" I knew it was Him. I said, "Yes, Lord." He says, "So do I remember mine. I'll never leave you. I'll never forsake you." और फिर एक आवाज मुझसे बोली, कहा, तुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है क्या नहीं? मैं जान गया ये वो था। मैंने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, इसलिए मुझे भी याद है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। That burden lifted, Christian friends. It hasn't been back since. That was last October. I've been a different person. वो बोझ हट गया। मसीही मित्रों, ये तभी से है, ये पिछले अक्टूबर से था। मैं एक भिन्न व्यक्ति हो गया था। Keep your promise to God. Whatever you say to God, you believe it. Separate yourself from anything contrary to His Word. God will hear and answer prayer. Let us bow our heads just a moment. परमेश्वर से अपनी प्रतिज्ञा बनाए रखें। आप जो भी परमेश्वर से कहते हैं, आप इसका विश्वास करिए। उसके वचन के विरोध में कोई भी बात हो, उससे स्वयं को अलग रखें। परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं। Are you willing to separate yourself tonight from all unbelief to hear the word of the Lord? If you'll do it and believe that He is the same yesterday and forever, these things what He has promised to do, we see Him doing it. क्या आप आज रात्रि स्वयं को सब प्रकार के अविश्वास से अलग रखने की इच्छा करते हैं कि प्रभु का वचन सुने? यदि आप ये करेंगे और इसका विश्वास करेंगे, तो वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। ये बातें जिन्हें उसने करने की प्रतिज्ञा की है, हम उसे ये करते हुए देखते हैं। Will you raise your hands and say, God, I make you a promise tonight. I believe everything that you promised. I believe every word. I never doubt from it. क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे, परमेश्वर आज रात्रि मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ,
मैं हर वचन का विश्वास करता हूँ और मैं इस पर कोई संदेह नहीं करूंगा। Our Heavenly Father, Thou knowest this story to be true. That was the 4th time. And then the 5th time was with my own precious wife when last week when that doctor writing that statement, that big tumor left before his hand touched her, just according to what it said. हमारे स्वर्गीय पिता, आप जानते हैं कि कहानी सच्ची है। ये 4थी बार है और फिर 5वीं बार मेरी बहुमूल्य पत्नी के साथ, जब आप पिछले सप्ताह जब उस डॉक्टर ने ये वक्तव्य लिखा कि वो बड़ा फोड़ा डॉक्टर के छूने से पहले उसे छोड़ गया, ठीक उसी के अनुसार जो उसने कहा। Now, Father, I pray that you help these people. I realize that I'm getting old. I know that I must go soon. अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों की सहायता करें। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्द ही जाना है। And I pray, Lord, that let me be honest and sincere with my brethren. Let me be honest and sincere with your people. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मैं अपने भाइयों के साथ ईमानदार और निष्कपट रहूं। मैं आपके लोगों के साथ ईमानदार और निष्कपट रहूं। If I can't be with them, then I don't think I would be with you, Lord, because I want to bear record of you. यदि मैं उनके साथ ना रह सका तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं प्रभु आपके साथ रहूंगा, प्रभु, क्योंकि मैं आपकी गवाही रखना चाहता हूँ। And I pray that you'll let the word so live in us tonight that you'll give all of us faith. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि वचन को आप हम में वास करने देंगे, कि आप हमें सारा विश्वास देंगे। And by this little gift that people think sometimes that a gift is something that you put in your hands and go out and cut your way through. और इस छोटे से वरदान के द्वारा लोग कभी कभी सोचते हैं कि वरदान कुछ ऐसा है कि आप अपने हाथ में रखते हैं और बाहर जाते हैं और अपना मार्ग बना लेते हैं। A gift is not that, Father. May they understand that a gift is get yourself out of the way so that the Holy Spirit can do what it wants to do. पिता, वरदान ये है, ये समझ सकें कि वरदान स्वयं को मार्ग से अलग हटा देता है ताकि पवित्र आत्मा जो वो करना चाहता है करे। Lord, let us get ourselves out of the way now and let the great Holy Spirit come and work through us. And may we see tonight the promises of Jesus Christ. प्रभु, अब हमें अपने आप से अलग हो जाने दें और महान पवित्र आत्मा आए और हमारे द्वारा कार्य करे और होने पाए आज रात्रि हम यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को देखें। And the one that I referred to especially tonight, Lord, that one where God came down before Abraham, manifested in flesh, and know the secret of the heart. It was God. वो जिसका आज रात्रि मैंने विशेष उल्लेख किया है कि वो जहाँ परमेश्वर अब्राहम के सामने नीचे आया, देह में प्रकट हुआ और हृदय के भेद को जान गया, ये परमेश्वर था। And when he was made flesh and dwelt among us, he knew the secret of the heart. और जब वो देहधारी हुआ और हमारे मध्य में रहा, उसने हृदय के भेदों को जाना। And the Bible says that the Word of God is the discerner of the thoughts that's in the heart. That's how the disciples know that he was God. और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का वचन हृदय के विचारों को परखता है। इसी प्रकार से चेलों ने जाना कि वो परमेश्वर था। Now, Father, will you come tonight and let our poor, humble tabernacles be dedicated to you, that you'll cause us to believe that it's your Spirit might make itself known among us tonight, that you're still the Word. अब पिता, क्या आप आज रात्रि आएंगे और हमारे बेचारे नम्र मंदिर आपको समर्पित हों, कि आप हमें विश्वासी बनाएंगे कि ये आपका आत्मा आज रात्रि हमारे मध्य में स्वयं को प्रकट करे कि आप अब भी वचन हैं। Then we'll separate ourselves from all unbelief and follow you. In Jesus' name, may you speak to us. Amen. तब हम स्वयं को सारे अविश्वास से अलग करेंगे और आपका अनुकरण करेंगे। यीशु के नाम में आप हमसे बातें करें। आमीन। O thou mighty man of valor, the Spirit of the Lord and the might of the Lord is upon thee. Even so shall the people hear thy word. It shall bring life and power and health unto them. And the angel of the Lord has spoken unto thee. Even now does the Spirit of the Lord speak by this voice unto thee. Be thou encouraged. Thy vision
shall be renewed. Thou shalt be strengthened in thy last days. Thou shalt run and not be weary. Thy youth shall be as the eagle that renews itself. The cry of the people is underneath. Thy burden bringeth life as the dry and the barren earth waiting for the rain. The people long it. Those that are bound, the cries of those in chains, waiting for thee. This voice came not because of the old, but because of those that hear thee. Great God of heaven, be merciful unto us. Help us, O Lord, Hallelujah. to obey your commandments. Use us to thy honor. स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रहकारी हो, हमारी सहायता कर, ओ प्रभु, की आपकी आज्ञाओं का पालन करें और हमें अपने सम्मान के लिए प्रयोग करें। And we thank thee for these encouraging words. Now let the Holy Spirit move through us and confirm these words in Jesus Christ's name. Amen. और हम आपका इन उत्साह बढ़ाने वाले वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं कि अब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करे और इन वचनों की पुष्टि करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Have faith in God. Don't doubt. Be of a good courage. The time of His coming is drawing close at hand. परमेश्वर पर विश्वास रखिए, संदेह न करें, हिम्मत रखें, उसके आगमन का समय समीप आ रहा है। Now tonight we've got a groups of prayer cards. How many in here has prayer cards? Raise up your hands. अब आज रात्रि हमारे पास प्रार्थना पत्रों का ढेर है। यहाँ कितनों के पास प्रार्थना पत्र हैं? अपने हाथों को उठाएं। It would be hard for me to go through that group and with the discernment if the Lord would give it. मेरे लिए ये कठिन होगा कि झुंड में विचारों को परखते हुए निकलूं, यदि प्रभु इसे देगा। But let me just take a moment and say this. How many in here doesn't have prayer cards and you're praying that God will heal you? How may the Lord God help each one of you? परंतु मैं एक क्षण लूं और ये कहता हूं कि कितने यहाँ ऐसे हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। अब प्रभु परमेश्वर आप में से प्रत्येक की सहायता करे। I am your brother. Jesus is your Savior. God is our Father. We are people. We are not of this world when we're born of God. We're of above. मैं आपका भाई हूँ। यीशु आपका बचाने वाला है। परमेश्वर हमारा पिता है। हम लोग हैं। हम इस संसार के नहीं हैं। जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, हम ऊपर के हैं। Now, before we have the prayer line to pray for the sick, and there's a man here on the platform tonight that prays for sick too, and ministers out there that pray for sick. अब इसके पहले हमारी प्रार्थना पंक्ति हो, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। और यहाँ मंच पर एक व्यक्ति है आज रात्रि जो बीमारों के लिए भी प्रार्थना करता है, और बहुत से सेवक वहाँ हैं जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। I don't want to leave the impression that I'm the only one who prays for the sick. See, God doesn't have to use me. He just use you or anybody. The thing is to believe what He said to be the truth. मैं ये असर नहीं डालना चाहता हूँ कि केवल मैं ही एक हूँ जो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है। समझे, परमेश्वर उसे मुझे ही प्रयोग नहीं करना है, वो आपको या किसी को भी प्रयोग कर सकता है। बताएं, बात यह है कि विश्वास करें, जो उसने कहा है वो सत्य है। But now that I've said this in vindication of what has been said, let us just bow our heads just a moment. परंतु अब जैसा कि मैंने इसे उचित ठहराते हुए कहा कि जो कहा गया है, एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। You that's praying and you're sick and do not have prayer cards,
you pray. You say something like this. आप जो प्रार्थना कर रहे हैं और आप बीमार हैं और प्रार्थना पत्र नहीं है, आप प्रार्थना करें और कुछ इस प्रकार से कहें, Lord Jesus, I know the Bible says that the prayer of faith shall save the sick, God shall raise him up. It's also said that Jesus Christ is the same yesterday, today, forever. प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि बाइबल कहती है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा, और ये भी कहा गया है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। If he is the same, well then he'll have to act the same, do the same. And then again, the Bible said that the Word of God was sharper than a two-edged sword and discerned the thoughts that was in the heart. यदि वो एक सा है तो उसे उसी प्रकार से व्यवहार करना है, वही करना है। और फिर बाइबल ने कहा कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है और विचार जो हृदय में थे उन्हें परख लिया। We know that when the Word was made flesh in the person of Jesus Christ, the Son of God, that's exactly what God did through His Son. हम जानते हैं जब वचन देहधारी हुआ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में ठीक वही जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया। Jesus said in St. John 14, the works that I do shall you also, even greater and more, for I go to my Father. यीशु ने संत यूहन्ना 14 में कहा, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, यहाँ तक कि और बड़े और अधिक, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। And now, the Bible says also in the book of Hebrews that He's a high priest. Now, do we all believe that? Certainly. He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. और अब बाइबल इब्रानी की पुस्तक में ये भी कहती है कि वो अब महायाजक है। क्या हम सब ये विश्वास करते हैं? निश्चय ही वो हमारा महायाजक है जो कि हमारी दुर्बलता की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है। Now He is, not I am, He is. No man is, He is. Now, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. अब वो है, ना कि मैं हूँ, कोई मनुष्य नहीं। वो अब महायाजक है जो दुर्बलता की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है। Now, if you feel and we're ready to step out and just turn yourself loose to your all unbelief and saying, "Let me touch you, great high priest." अब यदि आप अनुभव करते हैं और कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं और स्वयं को अपने सारे अविश्वास से स्वतंत्र कर लें और कह रहे हैं, मुझे आपको छूने दें, महान महायाजक। Now, if He's the high priest and the same yesterday, today, and forever, He will act as He did then because He is the same. अब यदि वो महायाजक है और कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो वो वही व्यवहार करेगा जैसा तब किया था, क्योंकि वो एक सा है। A woman touched Him one time when He was here on earth, visibly with her hand. He felt the touch and turned around and said, "Who touched me?" And all of them denied it. एक स्त्री ने जब वो यहाँ पृथ्वी पर था उसे छुआ था, प्रकट रूप में अपने हाथों से उसने एक स्पर्श का अनुभव किया और घूमा और कहा, किसने मुझे छुआ? और उन सब ने मना कर दिया। But He discerned the thoughts and He found the woman, told her what was wrong with her, and her faith had healed her. परंतु उसने विचारों को परखा और उसने उस स्त्री को ढूंढ लिया, उसे बताया उसके साथ क्या गड़बड़ी थी और उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। Now He's the same yesterday, today, and forever. Maybe that woman didn't have a prayer card, but she had faith, and that's all that's necessary. अब वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। संभव है उस स्त्री के पास प्रार्थना पत्र ना हो, परंतु उसके पास विश्वास था। बस यही है जो आवश्यक है। Have faith. Touch the great physician, and by a divine gift, if I can just get myself out of the way, and let the Holy Spirit say what He wants to do what He wishes to do. विश्वास करें, महान डॉक्टर को छुएं दिव्य वरदान के द्वारा। यदि मैं स्वयं को बीच में से हटा सका, तो पवित्र आत्मा को कहने दो जो वो करना चाहता है और जो वो करना चाहे करे। And that's a gift, not just imaginary. If it's imaginary, it won't work. If it is real, it works. और ये एक वरदान है, ना कि कल्पना। यदि ये कल्पना है तो कार्य नहीं करेगा, यदि ये वास्तविक है तो कार्य करेगा। That's what Jesus said. It's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me.
यही जो यीशु ने कहा, ये मैं नहीं जो कार्य करता है, ये मेरा पिता जो मुझ में रहता है। So it couldn't be me. He was the Son of God. I'm a sinner saved by His grace. इसलिए ये मैं नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का पुत्र था, मैं एक पापी, उसके अनुग्रह के द्वारा बचाया गया। Just believe. Don't press. Just believe and say, Lord Jesus, let me touch her. Just pray simple. Thank you, Master. Thank you, Master. बस विश्वास करिए, जोर न लगाएं, बस विश्वास करें और कहें, प्रभु यीशु मुझे अपना कपड़ा छूने दे। बस सादी प्रार्थना करें। Just keep praying. Everybody, stay where you are. Just pray and believe. बस प्रार्थना में रहें, हर कोई वहीं रहे जहां है, बस प्रार्थना करें और विश्वास करें। Just believe. Don't be in a hurry. Don't try to press. Just believe. बस विश्वास करें और जल्दी ना करें, जोर लगाने का यत्न ना करें, बस विश्वास करें। Now, do you believe, everyone? Can you believe? Just forget all the past. Think that Jesus promises. I know it's unusual, but Jesus promised it. अब क्या आप सब विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? बीते हुओं को भूल जाए। सोचें कि यीशु ने यह प्रतिज्ञा की है। मैं जानता हूं कि यह असाधारण है, परंतु यीशु ने इसकी प्रतिज्ञा की है। If you will be reverent just a moment. Then we'll start the prayer line. I don't say that He'll do this. He may. अब यदि आप करते हैं, क्षण भर के लिए श्रद्धा में रहें, तब हम प्रार्थना पंक्ति आरंभ करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो ये करेगा, वो कर सकता है। By the grace of God, I'm released from my own thinking. May He. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं उससे स्वतंत्र हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे अपने विचारों से हो सकता है वो। Now, if you feel to raise your head and just look this way and be in prayer. As Peter and John said, look on me, not look on us, rather. Didn't mean just to pay attention to what they were saying. अब बस आप यदि अपना सर उठाना चाहते हैं और इधर की ओर देखिए और प्रार्थना में रहिए, जैसे कि पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरी ओर देख, नहीं, हमारी ओर देख। ये अर्थ नहीं था, बल्कि उस पर ध्यान दे जो वो कह रहे थे। Now you're an audience. There's hardly anyone in here that I know outside of these Martin boys sitting here, and I think this is Brother Dalton sitting down here. I'm not sure if there's colored glasses on. I'll try to bypass in there. People which I do not know. आप भक्तगण हैं, संभवतः कोई यहाँ होगा जिसे मैं जानता हूँ, सिवाय ये मार्टिन लड़के यहाँ बैठे हैं, और मैं सोचता हूँ कि भाई डॉल्टन यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं निश्चित नहीं हूँ। काला चश्मा जो आपने पहन रखा है, मैं उन्हें छोड़ने का यत्न करूंगा, लोग जिन्हें मैं नहीं जानता। When I made Jesus Christ come with His power, that you might see that the promise of this day, the scripture that was predicted of this day, even according to Malachi 4, it must be fulfilled. Something's got to do it. God has promised it. अच्छा, संभव है यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य के साथ आए ताकि आप देख सकें आज के दिन की प्रतिज्ञा पवित्र वचन में इस दिन के लिए भविष्यवाणी की गई है, यहाँ तक कि मलाकी 4 के अनुसार इसे पूरा होना चाहिए। किसी चीज को तो इसे करना है, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। There's a lady sitting right out here. She's on her road to the hospital tomorrow. She's been in an accident, automobile accident. She's hurt herself. Got inward troubles, bad arm. वहाँ एक महिला बैठी हुई है
कल वो अस्पताल जाने वाली है। उसकी दुर्घटना हो गई, वाहन दुर्घटना। उसने स्वयं को चोट मार ली। अंदर की परेशानी, खराब हाथ। You have a prayer card, lady. You know. Am I a total stranger to you? I don't know you. We don't know one. Ma'am, just heard me preach, but you know I know nothing about you. आपके पास नहीं है। महिला, आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपके पास नहीं है। क्या मैं आपके लिए पूरी रीति से अपरिचित हूँ? मैं आपको नहीं जानता। हम एक दूसरे को नहीं जानते। श्रीमती जी, मुझे प्रचार करते सुना है, परंतु आप जानती हैं मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता। Are those things the truth? If that is, raise up your hand. God bless you. All right, sir. Have faith. You won't have to go. Your trouble's over. What did the lady touch? क्या ये बातें सत्य हैं? यदि हैं तो अपना हाथ उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, विश्वास करें। आपको जाना नहीं होगा। आपकी परेशानी समाप्त हो गई है। महिला ने क्या छुआ? There's a man sitting right behind her. Can't you see that light? Look at that amber-colored light moving. It's a man sitting right behind her. He's praying about something. It's a brother that's in the hospital. वहाँ एक व्यक्ति ठीक इस महिला के पीछे बैठा है। क्या आप ज्योति नहीं देख सकते? उस व्यंजनी प्रकाश को देखें। ज्योति चल रही है। ये व्यक्ति महिला के ठीक पीछे बैठा है। वो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये एक भाई है जो अस्पताल में है। You believe that God will heal your brother? Give him back his right mind and everything, make him right. You believe that? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके भाई को चंगा कर देगा, उसकी संतुलित मानसिक अवस्था को वापस कर देगा और हर चीज उसे ठीक कर देगा? क्या आप ये विश्वास करते हैं? I'm a stranger to you, is that right? That's a believe. All right. You can have. What did he touch? मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। क्या ये ठीक बात है? ये विश्वास। ठीक है, आप ले सकते हैं। इसने क्या छुआ? Here's a lady right back behind that sitting back here. See that light? Can you see it? Look here. Look, everybody look. See right here? Have an amber looking circle. यहाँ एक महिला है ठीक वहाँ पीछे। यहाँ पीछे बैठी है। उस ज्योति को देखें। क्या आप इसे देख सकते हैं? इधर देखें। देखो, हर कोई उधर देखे, जैसे व्यंजनी सा दिखने वाला चक्र। Right below it is a lady. She's here. She's praying for someone. It's 2 children, grandson, great grandson. The lady is not from here. She's from California, and she's come here requesting prayer. ठीक उसके नीचे ये महिला है। वो यहाँ है। वो किसी के लिए प्रार्थना कर रही है। ये 2 बालक, पोते और परपोते। महिला यहाँ से नहीं है, वो कैलिफोर्निया से है और वो यहाँ प्रार्थना के निवेदन के लिए आई है। Also, there's somebody with her. It's her sister. She sits right back here with that red dress on. She has epilepsy. That is true. She's from California. You brought her with her. Your name is Mary. You believe with all your heart. वहाँ उसके साथ कोई और भी है। ये उसकी बहन है। वो यहाँ पीछे लाल कपड़ों में बैठी है। उसे मिर्गी है। ये ठीक बात है। वो कैलिफोर्निया से है। आप उसे अपने साथ लाई हैं। आपका नाम मैरी है। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? Are those things true? Wave your hand if it's true. Or you believe with all your heart, then you can have what you asked for. क्या ये बातें सत्य हैं? यदि ये सत्य है तो अपना हाथ हिलाएं। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? तब आपको जो आपने मांगा है मिल सकता है। Now, anybody wants to ask the people if I knew them? Do you have a prayer card, lady? You don't. You don't need it. अब कोई भी लोगों से पूछ सकता है कि यदि मैं इनको जानता हूँ, महिला, क्या आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपके पास नहीं है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। Here's a man sitting right back here looking at me on the end of the road. He's got trouble with his knees. If he believes that God will heal them knees, you can have what he's praying about. You believe it? All right, your knee trouble's over, sir. विश्वास करेगा कि परमेश्वर उसके घुटनों को चंगा कर देगा, तो वो जिस विषय में प्रार्थना कर रहा है उसे मिल जाएगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है,
आपके घुटनों की परेशानी खत्म हो गई है श्रीमान। You have a prayer card? You don't have a prayer card? You don't need it. Now, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Thank you, Jesus. आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं। अब यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। A lady sitting here has got female trouble. You believe? There's a lady. Oh my. You're missing. Got a red coat. Her name is Miss Daly. Believe with all your heart. The Lord Jesus Christ make you well, Miss Daly. एक महिला यहाँ बैठी है, उसे स्त्री रोग है। क्या विश्वास करती हैं? हाँ महिला। ओह प्रभु, वो इसमें चूकने जा रही है। लाल कोट पहने हैं, उसका नाम कुमारी डेली है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, प्रभु यीशु आपको चंगा करता है। कुमारी डेली। Asked if I know the lady. I never seen her in my life. The Heavenly Father knows that. मांगिए, यदि आप महिला को जानते हैं, मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। स्वर्गीय पिता ये जानता है। You say, what'd you call her name? Well, Jesus said, your name is Simon. You're the son of Jonas. Is that right? आप कहते हैं, आपने क्यों उसका नाम पुकारा? यीशु ने कहा, तेरा नाम शमौन है, तू योना का पुत्र है। क्या ये ठीक है? Now, isn't that him the same yesterday, today, and forever? Do you believe that to be the truth? अब क्या ये वो नहीं जो कल, आज और सर्वदा एक सा है? क्या आप इसका सत्य होने का विश्वास करते हैं? Now, what did Jesus say? This will occur. And remember, that was the last sign that was given to the elected church, Abraham and his bunch, before the promised son appeared. Is that right? अब यीशु ने क्या कहा? ये होगा। अब स्मरण रखें, ये अंतिम चिन्ह था जो चुनी हुई कलीसिया को दिया गया, अब्राहम और उसका झुंड। इसके पहले की प्रतिज्ञा का वो पुत्र प्रकट हुआ। क्या ये ठीक बात है? God gave Abraham signs all along the journey, and so has he the church. But when the angel of the Lord come down into that, he destroyed the unbelieving Gentiles, and the expected son that had been waited for appeared, Isaac. परमेश्वर ने यात्रा में अब्राहम को चिन्ह दिए और इसी प्रकार से कलीसिया को, परंतु जब प्रभु का दूत नीचे आता है और ये करता है, उसने अविश्वासी अन्य जातियों को नाश कर दिया और आशा किया हुआ पुत्र जिसकी प्रतिज्ञा की जा रही थी प्रकट हुआ, इसहाक। This ministry will end soon, and the expected son will appear himself. ये सेवकाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी और आशा किया हुआ पुत्र स्वयं प्रकट होगा। The church has come from justification through the Lutheran, sanctification through the Wesleyans, into the baptism of the Holy Ghost through the Pentecostals, and now winding up to the headstone ministry, typing all the time right into that perfect. कलीसिया लूथर के द्वारा न्यायोचितता से आई, पवित्रीकरण वेस्लियों के द्वारा होते हुए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में पेंतिकोस्तलों के द्वारा, और अब चोटी के पत्थर की सेवकाई में सारे समय के नमूने से उस सिद्धता में Negative shadow becoming positive, and Jesus will come to catch His church someday. Those who believe. छाया प्रति से प्रत्यक्ष छाया में बदल रहा है। तब यीशु अपनी कलीसिया को लेने आएगा किसी दिन, वे जो उसका विश्वास करते हैं। Separate yourself from unbelief and believe tonight. Will you do it? स्वयं को अविश्वास से अलग करें और आज रात्रि विश्वास करें। क्या आप ये करेंगे? Let those who have prayer cards now, beginning, I believe I prayed up to 25 last night. Is that right? I think that's what was set down. Number 125. वे जिनके पास अब प्रार्थना पत्र हैं आरंभ कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैंने 25 तक प्रार्थना कर दी है पिछली रात्रि। क्या ये ठीक बात है? मैं सोचता हूँ कि ये तय किया गया था। नंबर 1, 25। 26, 27, 28, 30, line up over here with prayer cards. Number 1, line up on this side over here. Will you do it now? अब 26, 27, 28, 30 यहाँ पंक्ति बना लें। प्रार्थना पत्र नंबर 1 के साथ यहाँ इस ओर पंक्ति बना लें। क्या अब आप ये करेंगे? Now, we had the discernment line without the prayer cards so that people say, I was reading what was on the prayer cards. Them people had no prayer card. They're just people sitting there. And now, it goes on. अब बिना प्रार्थना पत्रों के विचारों को परखना। लोग कहते हैं कि
उनके प्रार्थना पत्रों पर जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा था। उन लोगों के पास कोई प्रार्थना पत्र नहीं था, वे बस लोग वहां बैठे हुए थे, और अब ये आगे बढ़ता है। How many have seen that go for a half hour at a time or more like that, see? And things take place. कितनों ने ये देखा था, ये आधे घंटे या इस प्रकार से चलता था और घटनाएं घटित होती हैं। But you see, we got to hold a little strength. I've got 40 some odd meetings ahead of me around down through the south. परंतु आप देखते हैं हमें थोड़ी सी सामर्थ्य रखनी है। मेरी 41 सभाएं हैं जो आगे करनी है नीचे दक्षिण में। And now move over here. Use your prayer cards. Move over on this side. All with A prayer cards. Come over on this side over here. Prayer cards A. अब आप अपने प्रार्थना पत्रों के साथ इधर आ जाएं, इस ओर आ जाएं। सारे ए प्रार्थना पत्र के साथ यहाँ इस ओर आ जाएं। प्रार्थना पत्र ए। Now the rest of us, let us sing to God only believe. Will you do that? All of us together. अब हम बाकी सब परमेश्वर के लिए गाएं, केवल विश्वास। क्या ये आप करेंगे? हम सब एक साथ। Oh, that's all. Just believe what? Believe His word. बस केवल विश्वास करें, जो उसके वचन का विश्वास करें। Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Praise God. Lord, केवल विश्वास। सारी चीजें संभव हैं, केवल विश्वास, केवल विश्वास। प्रभु प्रभु। maybe if I step right down there, maybe be better. Can you go down there? Pray for the sick. Go down there. Because we can. संभव है मैं वहां पर कदम रखूं, हो सकता है ये अच्छा होगा। क्या हम वहां बीमारों के लिए प्रार्थना के लिए जा सकते हैं? वहां जाएं, बीमारों के लिए प्रार्थना। लगता है हम जा सकते हैं। How many is interested in these people getting healed? कितने लोग इन लोगों की चंगाई में रुचि रखते हैं? Now, see, healing belongs to God. Is that right? Now, if Jesus stood here tonight with this suit of clothes that He gave me, and was wearing this suit of clothes Himself, अब देखिए, चंगाई परमेश्वर की है। क्या ये ठीक बात है? अब यदि आज रात्रि यीशु यहाँ खड़ा हो इस पोशाक सूट के साथ जो उसने मुझे दी है, और वह स्वयं इस सूट को पहने हुए होता। if you'd say, Lord, will you heal me? He'd say, I have already done it. He was wounded for our transgressions. With His stripes we were healed. Is that right? See, He's already did it. It's in past. यदि आप ये कहते, प्रभु क्या आप मुझे चंगा करेंगे? वो कहता, मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। क्या ये ठीक बात है? देखिए, उसने ये पहले ही कर दिया। ये भूतकाल में है। You say, Lord, save me. He's already did it. No matter how much you cry and pray and beat on the bench, it won't save you until you believe and accept what He's done for you. Is that right? Same thing it is. आप कहते हैं, प्रभु मुझे बचा। उसने ये पहले ही कर दिया। कोई मतलब नहीं कि आप कितना चिल्लाते या प्रार्थना करते और बेंच पीटते हैं। ये आपको नहीं बचाएगा जब तक आप विश्वास और स्वीकार नहीं करेंगे जो उसने आपके लिए किया है। क्या ये ठीक बात है? ये वही चीज है। I do not heal people. I can't heal people. But what would He do? If He's the same yesterday, today, and forever, He would do just what He did now. For that's what He promised for the day. मैं लोगों को चंगा नहीं करता, मैं लोगों को चंगा नहीं कर सकता, परंतु वो जो करेगा, यदि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, वो वही करेगा जो उसने किया, क्योंकि यही जो उसने आज के लिए प्रतिज्ञा दी है। How many knows that that's what He's promised? He's
promised it. Yes, sir. He promised it. And all the scriptures. कितने ये जानते हैं कि उसने यही प्रतिज्ञा दी है? वो प्रतिज्ञा दे चुका है। जी हाँ श्रीमान, उसने प्रतिज्ञा की है सारे पवित्र वचनों में। You all take the tapes of 7 church ages and things. See those things proven by the scripture that it's right. आप टेप लें 7 कलीसियाई काल और आदि आदि, देखिए वचनों द्वारा ये बातें सिद्ध की गई हैं कि ये ठीक हैं। Now, to you standing in this prayer line, to come down that line of discernment, Jesus saw one vision and he said, I perceive that virtue has gone from me, that strength. Is that right? Visions, you're in another world. अब आप जो इस प्रार्थना पंक्ति में खड़े हैं और विचारों को परखने वाली पंक्ति में आए हैं, यीशु ने एक दर्शन देखा और उसने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि सामर्थ मुझ में से निकली है, ये शक्ति। क्या ये ठीक बात है? दर्शन, आप दूसरे संसार में हैं। Now he's here. That's him that you touched. See? Now it just only identifies that he's here with us. अब वो यहाँ पर है, ये वो है जिसे आपने छुआ, समझे? अब ये केवल ये प्रमाणित करता है कि वो यहाँ पर हमारे साथ है। Now how many will believe if we just walk through this line, let me pray, lay hands up on you, and you go back to your seat. Do you believe I pray for you here and then lay hands on you? Each one of you get well. अब कितने विश्वास करेंगे यदि हम इस पंक्ति में से निकलेंगे और मुझे प्रार्थना करने दें और आपके ऊपर हाथ रखने दें और आप अपने बैठने के स्थान पर वापस जाएंगे? क्या विश्वास करते हैं यदि मैं यहाँ आपके लिए प्रार्थना करूंगा और फिर आपके ऊपर हाथ को रखूं, आप में से प्रत्येक चंगा हो जाएगा? You believe that was the Holy Spirit here? You can just keep on doing it. If you want to forfeit that line and just keep on for some more, well, we'll do that. क्या विश्वास करते हैं कि ये पवित्र आत्मा यहाँ पर था? ये इसे यहाँ करता रह सकता है यदि आप इस पंक्ति मूल्य चाहते हैं और इससे कुछ और अधिक होता रहे, हम ये क्यों करेंगे? See, that's what the Holy Spirit's here. See, it's just up to your thinking. If it make you believe more. देखिए, यही जो पवित्र आत्मा यहाँ पर है, समझे? ये नहीं, ये केवल आपके सोचने पर है, यदि ये आपसे अधिक विश्वास करवा सके। But many people has been taught, lay hands on them. The Bible said He sent His word and healed them. परंतु बहुत से लोगों को सिखाया गया, उन पर हाथ रखूं। बाइबल ने कहा, उसने अपना वचन भेजा और उन्हें किया। Well, that's what He did just now. Just confirmed His word, sent it to you, confirmed it, and it healed them. अच्छा, यही जो उसने किया, अपने वचन की पुष्टि करी, आपके पास भेजा, इसकी पुष्टि की और इसने इन्हें चंगा किया। The Gentiles said, Jews said, come lay hands on my daughter, she'll live. The Roman said, I'm not worthy, come under my roof, just say the word. That's what I'm trying to get you to believe, you see. अन्य जातियों ने कहा, यहूदियों ने कहा, आ और मेरी पुत्री पर हाथों को रख, वो जीवित रहेगी। रोमियों ने कहा, मैं योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, बस वचन कह दे। ओ, यही वो है जिसका मैं आपसे विश्वास करवाना चाहता हूँ। आप देखिए। But if you want to be prayed for and hands laid upon you, I want every one of you join with me in prayer as we pray for the people. Let us bow our heads. परंतु यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं और हाथों को आपके ऊपर रखूं, अब मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे साथ सम्मिलित हो। लोगों के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। Lord Jesus, I pray for the people now. They're aware that you're standing here. They know that you're in the midst of the people. प्रभु यीशु, अब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वे इस बात में जागरूक हैं कि आप यहाँ खड़े हैं। वे जानते हैं कि आप लोगों के बीच में हैं। And when these people pass over this platform tonight, may they not come just coming by me, your servant, or these other servants of yours sitting here. और जब आज रात्रि ये लोग इस प्रचार मंच से निकलते हैं और मेरे पास से होकर या दूसरों दासों के पास से जो आपके यहाँ बैठे हैं, may they realize that they're coming to the temple of the living God. They're coming under a promise that God said, these signs shall follow them that will believe. When they lay their hands on the sick, they shall recover. ये इसे अनुभव करें कि ये जीवित परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं। ये उस प्रतिज्ञा के तले आ रहे हैं जो परमेश्वर ने कही, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। जब वे अपने हाथ बीमारों पर रखते हैं तो वे चंगे हो जाते हैं। He promised that. He promised that every man that would believe would be saved. And every man that does believe gets saved.
Everyone that believes in healing gets healed. Father, help our unbelief now. उसने ये प्रतिज्ञा की है, उसने ये प्रतिज्ञा दी है कि हर व्यक्ति जो विश्वास करेगा बच जाएगा, और हर व्यक्ति जो विश्वास करता है बच गया। हर वो जो चंगाई में विश्वास करता है चंगा हो गया। पिता, अब हमारे अविश्वास में सहायता कर। You've identified yourself here tonight scripturally to show us that you're here. Now let it come to pass that every person that comes across this platform or in this audience, may there not be a feeble person among us when the service is over. आपने प्रमाणित कर दिया है। आज रात्रि आप स्वयं वचनानुसार यहाँ पर हैं कि हमें दर्शाएं कि आप यहाँ पर हैं। और अब ऐसा घटित हो कि हर व्यक्ति जो इस मंच पर आए या इस भक्त मंडली या कोई भी दुर्बल व्यक्ति यहाँ हमारे मध्य में ना हो जब हमारी सेवा पूरी हो। May the great Holy Spirit come among His people and anoint everyone, Lord. All these ministers, all these servants of yours sitting here by the hundreds. महान पवित्र आत्मा उसके लोगों के मध्य में आए और हमारा अभिषेक करे हर एक का। प्रभु, ये सारे सेवक गण और आपके सारे सेवक गण यहाँ पर बैठे हैं, सैकड़ों के लगभग। Father, I pray that each of our prayers will go to you while we're in the divine presence of your being. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी हर प्रार्थना आपके पास पहुँचे जबकि हम आपकी दिव्य उपस्थिति में हैं। And may these people understand as they pass this platform that tonight is the night of their healing, if they can believe. और ये लोग समझ सकें जैसे कि ये इस प्रचार मंच से निकलते हैं कि आज रात्रि उनकी चंगाई की रात्रि हो, यदि ये इसका विश्वास कर सकें। Now I want everyone to continue in prayer as the people come by, and I'll be laying hands upon each one for their healing. अब मैं चाहता हूं कि प्रत्येक निरंतर प्रार्थना में रहे जैसे कि लोग यहाँ से होकर निकलते हैं, और चंगाई के लिए मैं प्रत्येक पर हाथ रखूंगा। Come, sir. I pray for this, my brother, in the name of Jesus Christ. आइए श्रीमान, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा भाई यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। I pray for this, my brother, in the name of Jesus Christ. I pray for my sister in the name of Jesus Christ for her healing. Amen. I pray for my sister in the name of Jesus Christ for her healing. मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा भाई यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। मैं अपनी बहन के लिए यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में अपनी बहन की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray for my sister in Jesus' name for her healing. I pray for my sister in Jesus' name for her healing. I pray for my brother in the name of Jesus Christ for his healing. मैं अपनी बहन के लिए यीशु के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी बहन के लिए यीशु के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने भाई के लिए यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray for my sister in the name of Jesus Christ for her healing. I pray for my brother in the name of Jesus Christ for his healing. मैं अपनी बहन के लिए यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने भाई के लिए यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray for my brother in Jesus' name. I lay hands upon our brother in the name of Jesus Christ for his healing. मैं यीशु के नाम में अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे चंगा करेंगे। मैं यीशु के नाम में अपने हाथों को भाई पर रखता हूँ कि उसकी चंगाई के लिए। I lay my hands upon this brother in Jesus' name for his healing. यीशु के नाम में मैं अपने हाथों को भाई पर उसकी चंगाई के लिए रखता हूँ। My hands laid upon this brother, I ask for his healing in Jesus' name. While he's in the divine presence here now. अपने हाथों के साथ जो भाई पर रखे हैं, मैं इसकी चंगाई को मांगता हूँ यीशु के नाम में, जबकि यह आपकी दिव्य उपस्थिति में यहाँ आपके अभिषेक में है। Heal this my sister, Father, I pray in Jesus Christ's name. Jesus Christ's name, let me be. Likewise upon my brother, you Father, I lay my hands in Jesus' name, let me be. मेरी इस बहन को चंगा करें पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ये चंगा हो जाए। इस प्रकार से पिता, मैं अपने भाई के ऊपर अपने हाथों को रखता हूँ, यीशु के नाम में ये चंगा हो जाए। Father God, in the name of Jesus Christ, I lay hands upon my sister.
In the name of the Lord Jesus, pardon me, Father. I'll lay hands upon this brother and ask for his healing in Jesus' name. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं अपने हाथ अपनी बहन पर रखता हूँ, ये चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम हमारे पिता, मैं अपने हाथ को इस भाई पर रखता हूँ और उसकी चंगाई के लिए यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन। In the name of Jesus Christ, I'll lay hands upon my brother and ask for his healing for the glory of God. Amen. यीशु मसीह के नाम में मैं अपने हाथ अपने भाई पर रखता हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी चंगाई मांगता हूँ। आमीन। Our Heavenly Father, I'll lay hands upon my brother and I ask for his healing, connecting my prayer, Lord, with his prayer and the prayer of the church as we gather tonight. My hands upon him, identifying my faith in the Son of God. I ask this healing. Amen. हमारे स्वर्गीय पिता, मैं अपने हाथों को भाई पर रखता हूँ और उसकी चंगाई मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना को इसकी प्रार्थना से जोड़ दें और कलीसिया की प्रार्थना जिसे आज रात्रि आपने एकत्र किया है। मेरे हाथ इस पर परमेश्वर के पुत्र में मेरे विश्वास को प्रमाणित करें और मैं इसकी चंगाई मांगता हूँ। आमीन। अब हमारे पास पहिए वाली कुर्सी के मामले हैं प्रार्थना करने के लिए। Jesus said one time, "Know you what I've done to you? I've done just what God commanded to be done." Now let us pray together, each one. एक बार यीशु ने कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने वही किया जो परमेश्वर ने करने को कहा। अब आइए हम मिलकर हर एक प्रार्थना करें। As you put your mind upon God, hold your prayer. Remember, believe now. Believe with us. जैसे कि आप अपना ध्यान परमेश्वर पर रखते हैं, अपनी प्रार्थना को थामे रहें, स्मरण रखें, अविश्वास करें, हमारे साथ विश्वास करें। Each one of you here that's sick, and maybe didn't have a prayer card. Now we'll be giving out prayer cards again tomorrow night at 6:30 or 7, something like that, 6:30 or 7. So we'll have prayer line again tomorrow night. आप में से प्रत्येक जो यहाँ पर है, जो बीमार है और हो सकता है आपके पास प्रार्थना पत्र ना हो, अब हम फिर से प्रार्थना पत्र बांटेंगे आने वाली रात्रि 6:30 या 7, कुछ इस प्रकार से 6:30 7। इसलिए हम आने वाली रात्रि फिर से प्रार्थना पंक्ति लेंगे। I'm sorry that I kept you a little late tonight on account of the prayer line. May God bless you. Now let us bow our heads again. मुझे खेद है, आज रात्रि मैंने प्रार्थना पंक्ति के लिए आपको थोड़ी अधिक देर रोके रखा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हम अपने सिरों को फिर से झुकाएंगे। As we pray, Father, we forgive every man his sin against us. If there be found anything in us that's unlike you, forgive us, Lord. पिता, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने विरोध में हर व्यक्ति के पाप को क्षमा करते हैं। यदि हम में कोई चीज पाई जाती है जो आपको पसंद नहीं, प्रभु हमें क्षमा करें। For we are told that we're to be written epistles of God, read of all men. क्योंकि हमें बताया गया है कि हमें परमेश्वर की लिखित पत्री होना है जो सब मनुष्यों के द्वारा पढ़ी जाए। And as we have obeyed your commandments, seen your presence, identifying yourself with us, people has walked up this platform testifying of their faith. We've laid hands upon them, Father. जैसे कि हमने आपकी आज्ञाओं को माना है, आपकी उपस्थिति को देखा है और स्वयं को हमारे साथ प्रमाणित कर रहे हैं। लोग इस प्रचार मंच पर अपने विश्वास को प्रमाणित करने आते हैं। हमने उनके ऊपर अपने हाथ रखे हैं, पिता। Not just as one of us, but all of us together in prayer. We've laid hands upon them, believing that you'll heal their bodies. न कि जैसे हम में से एक, परंतु हम सब एक साथ प्रार्थना में हमने अपने हाथ उन पर रखे हैं, ये विश्वास करते हुए आप उनकी देहों को चंगा करेंगे। You said when you were here on earth, if you ask the Father anything in my name, I'll do it. Jesus, the Son of God, that was your promise, Lord. आपने कहा जब आप यहाँ पृथ्वी पर थे, यदि तुम पिता से कुछ भी मेरे नाम से मांगो तो मैं करूँगा।
यीशु परमेश्वर का पुत्र, प्रभु ये आपकी प्रतिज्ञा है। And the one that made the promise has identified himself here tonight to fulfill his promise. So it has been carried out, your commandments, laying hands on the sick. Now, let it be done. It's been written. Let it be done. और वो जिसने स्वयं को प्रमाणित करने की प्रतिज्ञा दी है, यहाँ आज रात्रि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है, इसलिए यहाँ किया गया है। आपकी आज्ञाएं बीमारों पर हाथों को रखना, और अब ये होने दें, ये लिखा हुआ है, ये होने दें। Let the power of Jesus Christ break tonight and separate every person in here from any unbelief. And let the presence of Jesus Christ, the Word who knows the thoughts of our heart, let it take preeminence tonight in every heart. आज रात्रि यीशु मसीह की सामर्थ आए और हर व्यक्ति को यहाँ अविश्वास से अलग करे, और यीशु मसीह की उपस्थिति, वो वचन जो हमारे हृदय के विचारों को जानता है, आज रात्रि प्रत्येक हृदय में उत्कर्ष होने दे। And we rebuke Satan and all of his powers of darkness, all of his powers of unbelief. The Spirit of God has raised up a standard against you, Satan. You are a defeated being. Jesus Christ defeated you at Calvary. और हम शैतान को फटकारते हैं और उसकी अंधकार की सारी सामर्थ्यों को। शैतान परमेश्वर के आत्मा ने तेरे विरुद्ध अपने स्तर को ऊंचा कर दिया है। तू हारा हुआ जीव है। यीशु मसीह ने तुझे कलवरी पर हरा दिया। He raised up the third day triumph over death, hell, and the grave. He ascended on high and gave gifts to man. He's here in person tonight. वो तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु, अधोलोक और कब्र पर जयवंत हुआ। वो ऊंचे पे चढ़ गया और मनुष्य को दान दिए। आज रात्रि वो यहाँ व्यक्ति में है। He said, a little while and the world will see me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. उसने कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर। We see His presence here tonight, fulfilling His word. By faith, we believe that every sick person in here shall be healed for the glory of God, in the name of Jesus Christ. आज रात्रि हम उसकी उपस्थिति को यहाँ देखते हैं, उसके वचन को पूरा होते हुए। विश्वास के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि यहाँ हर बीमार व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाएगा। And the people said, Amen. God bless you. Back to the brother. और लोगों ने कहा, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। वापस भाई को।